नमस्कार। आप सबको इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज के शुभ दिवस पर आज शुभ दिवस इसलिए है क्योंकि आज हम दो बहुत ही प्रमुख, मैं ये कह सकता हूँ कश्मीर शाक्त दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो इन दो पुस्तकों का आज विमोचन है, जो दोनों डॉक्टर चमनलाल रैना जी ने लिखी है। एक पुस्तक जो कि जिनका पब्लिकेशन हम कोर शारदा टीम की तरफ से, और जो श्री महाराग्नि प्रादुर्भाव निरूपणम एवं महाराग्नि स्तुति, तो ये ब्रिगी संहिता से वर्णित है। इसका प्रकाशन कोर शारदा टीम से। और जो दूसरी पुस्तक है फेसेट्स ऑफ दश महाविद्या, ये दूसरी पब्लिकेशन मिलचार पब्लिकेशन, डॉक्टर सराफ जी हमारे साथ है, जो कि इस पुस्तक की पब्लिकेशन उनके पास है। आज इन दोनों पुस्तकों का विमोचन है। टुडे इज द इनॉग्रेशन ऑफ दीज टू इम्पोर्टेंट बुक्स। सो to start with the program, first I will introduce Dr. Chamalal Raina. Definitely my interaction with Dr. Chamalal Raina has been almost like more than 2 years, और मेरा अनुभव, मैं तो हमेशा उनके बच्चे की तरह हूँ, और जितना मैंने सीखा है उनसे, थोड़ा थोड़ा जितना उन्होंने ज्ञान दे दिया शाक्त दर्शन के हिसाब से। इससे पहले भी कोर शारदा टीम की तरफ से दो पुस्तकों का विमोचन हमने किया था, शारदा सहस्रनाम और काड़ी विद्या का, जो हमने अपनी कोर शारदा टीम में पब्लिश की थी। डॉक्टर चमनलाल रैना was initiated in Sharda Bij Mantra by Swami Madhavanand Saraswati at Gauri Shankar Ashram in 1945, जबकि वो 5 साल के थे, at the age of 5. Dr. Chamalal Rana ji had studied Shaiva Darshan from Swami Ishwar Swarup, Swami Lakshmanju Maharaj, from Pandit Jagannath Shibu, Professor P.N. Pushp, and Professor Nilkant Gurduji. They are graduate in mathematics and honors in Urdu and masters in English, Hindi. इससे ज्यादा और आगे देखा जाए तो डॉक्टर चमनलाल जी ने बहुत काम किया है कश्मीर शैव दर्शन या शाक्त दर्शन पर। बहुत सारी पुस्तकों का इन्होंने बेसिकली जो बहुत सारी पुस्तकों पर काम किया है, उसमें ललेश्वरी पर इन्होंने काम किया है। और भी आज के पुस्तक के बाद भी और भी 2-3 पुस्तकें हैं जिन पर ये काम कर रहे, पंचस्तवी पर, और आगे कश्मीर शैव दर्शन, जिसपे मैंने थोड़ा सा इनके मार्गदर्शन से मैंने थोड़ा उसका इंग्लिश में अनुवाद किया था, वो भी उस पर भी काम चल रहा है। तो ये दो पुस्तकों का विमोचन है आपके सामने। मैं ये दो पुस्तकें दिखाता हूँ। ये एक पुस्तक है छोटी सी महाराग्नि प्रादुर्भाव की, और दूसरी पुस्तक जो कि बहुत ही सुंदर प्रकाशित है मिलसार पब्लिकेशन से, दश महाविद्या पर। नमस्कार चमनलाल जी। एंड आज हमारे साथ जो हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रशेखर जी यूएसए है, डॉक्टर सराफ जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, जो कि इस कार्यक्रम में बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रण करता हूं डॉक्टर सराफ जी का वीडियो। वो बोल नहीं पाएंगे, मुझे उनका वीडियो शेयर करना पड़ेगा, और उनकी मैसेज इस बुक पर मैं दिखाना चाहता हूं। नमस्कार। Myself, Dr. Saraf, practicing general physician in Rohini. Respected Dr. Chandrasekhar ji, Dr. Avatar Krishan Ganju ji, Professor Emeritus at the University of Miami, and the learned devotees of the Divine Mother, and the learned participants in this Zoom meeting.
I take this opportunity to talk to you as the publisher of the present book, the first of its kind, which is related to the 10 aspects of Devi, which has got its roots in Vedas, followed by Puranas and the Agmas of Kashmir. Though I am a physician by training and profession, yet I wanted to know about the great legacy of Kashmir, which revolves around the Ishta Devis and the Siddha Pithas of Kashmir. After retirement, I learned Devanagari typing for Hindi and the Sanskrit, including typing the diacritical marks for Sanskrit technical terms, which helps in giving correct pronunciation in English to Sanskrit words, which cannot be otherwise translated in English properly. Since I learned how to read Durga Saptashati under the guidance of Dr. Chamanlal Rainaji and understood the Nyasa and the Patha Karma, there I learned the concepts regarding the Vidya word. I got further fascinated to understand that the Bhavani Sahasranama also starts from the Mahavidya Jagat Mata. I learned that the Mahavidya stands for the Dash Mahavidya. Meanwhile, Dr. Raina was persuaded by Professor Rajendra Prasad Sharma, himself a sadhaka of the Lalita Tripura Sundari and the head of the Department of Philosophy and coordinator of the UGC Center of Excellence in the Department of Philosophy at Rajasthan University. He is also the editor of Shri Vidya Mantra Mahayoga trilingual journal published from Varanasi. It was he who insisted upon Dr. Raina that the facets of Dash Mahavidya should be explained in English with Sanskrit text so that the devotees or researchers in the Shakti Tattva will understand its essence in English and will focus on the ancient heritage of Sanatana Sanskriti of Bharata. While Kashmir is the abode of Sri Maharajna Sharika Tripura Sundari Jeshta Bhuvaneshwari Bala Devi Bhadrakali. The whole manuscript was written by hand by Dr. Raina. I did type it and every effort was taken that the Bija Mantra and the textual references should be accurately typed, as any mistake in the mantras would distort the meaning of the mantra. I, as publisher, am thankful to Professor Rajendra Sharma ji for his generosity to provide the relevant Sanskrit material to Dr. Raina. Dr. Raina insisted that the whole typed manuscript should be revised by the Rashtra Sammanit Mahopadhyay Devrishi Kalanath Shastri ji, formerly Professor of English and member Sanskrit Commission, Government of India, for his extraordinary research work. He was kind enough to write prologue to this book. The book was reviewed by an internationally renowned Indologist and alumnus of BHU and the distinguished Professor Emeritus of Dr. Nathan Katz, who wrote a letter of appreciation for his work. There are very few people around like Dr. Sahib who write in Hindi, Sanskrit, Kashmiri, Urdu, English simultaneously with the same authority. Recently, Dr. Raina has also authored Sri Aurobindo and the Shakti Tattva published by Department of Philosophy, University of Rajasthan. Recently, University of Kashmir published his postdoctoral work on the Iqbal and his heritage. In addition, I learned he has also written Kulikitam for International University of USA. Presently, he translated the Indo-Jewish studies by Professor Nathan Katz from English to Hindi. I am blessed by Ma for giving me a chance to work on his next two books and giving final shape to Sri Panchastri with the literal translation and explanation in Hindi as well as English. And the other work is on Lalabaka in English. As I understood, he has covered all the important Sahasra Namas of Kashmir as per the guidance of the research methodology in religious studies. You will be glad to know he was awarded Darshan Vachasapati from the Vishwas Parishad Varanasi. Namaskar and thank you all for bearing with me. थैंक यू हमारा सराब जी। हमारे बीच में सराब जी की बेटी है स्वाति, जो कि उस पुस्तक के बारे में बोलना चाहती है। स्वाति जी। Good morning, good evening, everyone. Namaskar. First of all, I'm very grateful that I am a part of this commemoration of scholars and I've been given the privilege to speak a little bit about Dashamahavidya. So, the concept of Dashamahavidya, the 10 great wisdoms, originates in Hindu Devi traditions
particularly within the Shakta sect, which venerates the Divine Mother or Shakti as the Supreme Being. The Dashamahavidya represents 10 powerful and dynamic aspects of the Divine Mother, each with her own attributes, forms, and energies. Origins in Hindu scriptures and tantras. Tantric texts. The Dasha Mahavidya finds its roots primarily in the Tantras, which are scriptures that explore esoteric practices, rituals, and philosophical teachings. Texts like the Shakti Tantras, Kalika Puranas, and Mahanirvana Tantra provide extensive descriptions of these 10 goddesses. The second in this is Devi Mahatmya, Durga Saptashati. Though not explicitly listed in the Dasha Mahavidya, this text, particularly in its description of various forms of the goddess Durga, such as Kali, Tara, resonates with the thematic underpinnings of these 10 goddesses. It highlights the power of the goddess in her various aspects to destroy evil and liberate devotees. The third in this is Upanishads and Puranas. Some later Upanishads, like the Tripura Upanishad, also make subtle references to aspects of the Dasha Mahavidya, emphasizing on the power of Shakti in various forms. The Kalika Purana, as well as some chapters of the Brahmanda Purana, refer to the specific goddesses of this tradition. The fourth is Puranic origin. One mythological story that illustrates the emergence of the Dasha Mahavidya comes from a narrative involving Shiva and Sati. According to this legend, when Shiva, upset with Sati's decision to attend her father Daksha's yajna without his permission, tried to stop her, Sati manifested herself into 10 different forms, representing the 10 Mahavidyas. This story emphasizes the transcendent and multifaceted nature of the goddess. The 10 goddesses of the Dash Mahavidya. What is the philosophical significance? In the Tantric framework, the Dasha Mahavidya is more than just a group of deities. It is a path of spiritual evolution. Each goddess represents a specific aspect of reality and consciousness, guiding the practitioner through different phases of realization, from the gross material world to the subtle and ultimate truth of the multi universe. This tradition flows through the fluidity of Hinduism, where the divine feminine energy manifests in myriad ways to guide seekers towards spiritual freedom. The Dasha Mahavidya, that is the 10 great wisdoms, represents a group of 10 goddesses, each embodying distinct aspects of the divine feminine energy, such as Shakti. These 10 forms are not just individual deities but also represent a complete journey through various facets of existence, from creation and perseveration to destruction and transcendence. They are a significant part of both the Shakta tradition and Tantra in Hinduism. The 10 Mahavidyas. Number 1 being Kali, the fierce form representing time and the power of destruction. The first and foremost of the Mahavidyas, Kali represents time, transformation, and the power of destruction and regeneration. She is often depicted as fierce, dark skinned, and wielding a sword, signifying the destruction of ego and ignorance. Number 2 being Tara, the savior who guides the devotees through difficulties, the goddess of compassion and protection. Tara is seen as guiding star who helps her devotees across the ocean of existence. She is associated with both nurturing and fierce aspects, such like the mother figure. Third being the Tripura Sundari, Shodashi, also called Shodashi, the beautiful goddess embodying the full perfection of beauty and wisdom, also known as Lalita or Shodashi. She is the embodiment of beauty, grace, and balance. Tripura Sundari represents the union of worldly and spiritual life, symbolizing the power of attraction and the energy of divine love. Fourth is the Bhuvaneshwari, the queen of the universe. Bhuvaneshwari signifies the cosmic space in which all creation occurs. She embodies the concept of vastness, representing the all encompassing nature of the universe. Fifth is Bhairavi. Bhairavi is the goddess of fierce determination and inner strength. She embodies the power of transformation through discipline and devotion, representing the fire of purification. Sixth is Chinnamasta, one of the most striking and esoteric forms. Chinnamasta symbolizes self sacrificing, severing the ego, and paradox of life and death. She is depicted as the headless goddess. The 10, what is, so majorly these are what I wanted to read. Thank you everyone for giving me this space. Thank you.
Namaskar. thank you, Swati ji. Thank you. राकेश जी अमिस वनियो तो शर्मा जी सु करे yes, इनॉग्रेट yes. हमारे बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है. Dr. Rajendra Prasad ji, who has also written the foreword for this book, are formal head and professor of philosophy, director Gandhian Studies, Rajasthan University, editor Sri Vidya Mantra, Mahayoga, Pratika Varanasi. They had been formal coordinator, Center of Advanced Studies, and formal chairman, Department of Philosophy in University of Rajasthan. Educational qualification, they are MA in Sanskrit and Philosophy. Acharya ji is also basically a grammar, literature, philosophy, and also has been teaching Sanskrit in Sanskrit department from 1988 to 1991, and then later in philosophy department from 1991 to 2019. Acharya ji has also published many books, जिनमें से कुछ का मैं नाम ले लूंगा, जैसे बोधार्थ प्रलयालोचनम, श्रीमद् भगवद गीता काशनी व्याख्या, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, कठोपनिषद काशनी व्याख्या, गणपति स्तुति कल्पतृप, पुरुषार्थ शंकर प्रकाश इत्यादि. Acharya ji has also been the Sampadak of the Journal of Foundation Research. Acharya ji, we would like to hear from you. हाँ जी. ब्रह्मांड पिपीलिकांत तनुभृत सुदृंभमाणस्फुटं जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति भासकतया सर्वत्रया दिव्यति सा देवी जगदंबिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि. श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्दष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. वंदे गुरु पदद्वंदम अवांग मनसगोचरम रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम अतर्क्यम ते ब्रह्म नारायणं पद्महुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि. मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुं न प्रभवन्ति वांछित फलम् यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम्. आज के इस ग्रंथ विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित सभी शाक्त साधकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं. और आज के इस समारोह में प्रोफेसर चमनलाल रैना जी की जो पुस्तक है उसका लोकार्पण होना है और एक दूसरी पुस्तक भी उनकी लोकार्पण होना है. यह कार्य जो रैना जी ने संपादित किया है और इस पर इन्होंने जो इंग्लिश में इसको बताया है, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है. 10 महाविद्याओं के बारे में वेदों में उल्लेख मिलता है. 10 महाविद्या वेदों में निरूपित है, पुराणों में भी निरूपित है, तंत्रों में भी निरूपित है. 10 महाविद्या जो है दुर्गा सप्तती में भी आती है. 10 महाविद्याएं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 त्रित्व के साथ में 7 देवियां और वहां गिनी गई है 12वें अध्याय में कि वो जो दुर्गा है भीमा है. तो भीमा जिसे कश्मीर में भीड़ा बोलते हैं, भीमा, दुर्गा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, इन सबको वहां 7 देवियां गिनी गई. दुर्गा सप्तती के 12वें अध्याय में कि 7 देवी के स्वरूप है. तो टोटल 10 देवियां होती है. ये 10 की संख्या कहां से आती है?
10 की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 10 में हम 8 दिशाएं होती है, एक ऊपर और एक नीचे, तो 10 दिशाएं होती है। 10 दिशाओं में क्या व्याप्त है? मूल 3 तत्व होते हैं। वेदों में ऐसा बताया गया कि 3 तत्व मूल होते हैं। एक तो पृथ्वी जिसको अग्नि कहते हैं, दूसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा। तो 3 तत्व से ये सृष्टि चलती है। वेदों में जब देवताओं का विकास हुआ तो वैदिक देवताओं में उन्होंने माना कि जो पृथ्वी है उसमें भी 10 गुण है। पृथ्वी में 10 गुण है। पृथ्वी हमारा आधार है, पृथ्वी नहीं हो तो हम रहेंगे कहाँ? पृथ्वी को अग्नि तत्व कहा उन्होंने। पृथ्वी के ऊपर जो दूसरा तत्व है जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, वो अंतरिक्ष जो है वो रुद्र तत्व कहलाता है, वो शिव तत्व कहलाता है। शिव और शक्ति का जो समारंभ होता है, शिव तत्व जो है वेदों में 11 रुद्र की बात की गई। 10 दिशाओं में रुद्र जो है, उस रुद्र की जो शक्तियां वो 11 महाविद्याएं कहलाती हैं, 10 या 11 महाविद्याएं कहलाती है। तो उन्होंने वेदों में कहा वसु, रुद्र, आदित्य। आदित्य जो है ऊपर जो सूर्य है उसे हम आदित्य कहते हैं, उसमें 12 कलाएं मानी गई। इस तरह से ये वेदों में इसका विकास हुआ। वेदों में श्री की बात आई, श्री सूक्त आया। वेदों में देवी सूक्त आया, वाक सूक्त आया। वेदों में त्रिपुरोपनिषद भी आई, और उसमें तो सभी तरह से उसमें चारों वेद में श्री सूक्त, 4 तरह के श्री सूक्त प्राप्त होते हैं। इन सब में शक्ति की बात की गई। शक्ति प्रधान है। शिव से भी शक्ति का प्रधान जब माने तो वो शाक्त कहलाते हैं। जितने भी दर्शन है, विद्यारण्य ने एक सूची दी है कि सभी दर्शनों में शक्ति का ही प्राधान्य है। वो कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में तारा देवी प्रधान रही, वैदिक दर्शन में सरस्वती या गायत्री या ब्रह्मा की 3 पत्नियां हैं। तो ब्राह्मी, जिसको हम ब्राह्मी कहते हैं, ब्राह्मी का अर्थ है कि वो या तो सरस्वती है या गायत्री है या सावित्री। तो वैदिक ज्ञान में मूल देवता सावित्री मानी गई, गायत्री मंत्र माना गया। दूसरी जो वैष्णव परंपरा है, उसमें भी वैष्णव में लक्ष्मी को प्रधान माना जाता है, और शैव परंपरा में गौरी को प्रधान माना जाता है। सूर्य के साथ भी शक्ति ही प्रधान है, और अंत में जो शाक्त दर्शन है उसमें भुवनेश्वरी को प्रधान माना गया। तो सभी दर्शनों में शक्ति की बात होती है, क्योंकि जो ब्रह्म होता है वो निराकार होता है, ब्रह्म निर्गुण होता है। शक्ति त्रिगुणात्मिका होती है। गीता में कहते हैं कि जो 2 चीजें अनादि है, एक तो प्रकृति और एक पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति त्रिगुणात्मिक है, उसे हम शक्ति कहते हैं, कि जिससे सृष्टि स्थिति संहार हो, वही शक्ति कहलाती है। इसके अलावा 2 कार्य और करती है शक्ति, अनुग्रह और निग्रह। यानी 5 कार्य बताते हैं ब्रह्म के, 5 ब्रह्म के भेद किए जाते हैं। इस तरह से 10 महाविद्याएं जो है वेदों में आई, और वेदों के बाद में तंत्रों में भी आई 10 महाविद्या। और इनकी बहुत सी कथाएं जो मेरे से पहले लोगों ने बता दी कि ये इस तरह का प्रकाट्य हुआ। और इसमें जो काली जो है, काली को हम कहते हैं कि काली जो आद्या कहलाती है। आद्या का अर्थ है कि वो प्रथम देवी है, यानी वो अंधकार की देवी है। दुर्गा सप्तशती के रहस्य में वो कहते हैं कि जो देवी है उसके 10 नाम कहते हैं कि निद्रा, तृष्णा, चैकवीरा, कालरात्रि, दुरत्या। से कालरात्रि भी कहते हैं, और दुरत्या इसका कोई भी खत्म, ये हमेशा रहती है, संसार भी नष्ट हो जाए तो भी ये रहेगी। काली का जो स्वरूप है उसमें वो शव पर आरूढ़ है। शव पर आरूढ़ है, यानी पूरा विश्व जब खत्म हो जाएगा तो अभी उसका अट्ठास चलेगा काली का। तो काली जो सबको खा जाती है, सबका भक्षण कर लेती है, पर काली का भक्षण कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसको महाकाली कहते हैं। तो काली और तारा जो है, तारा जो दूसरी देवी है, तो ये सब अर्धरात्रि में हम इसकी उपासना करते हैं कि अर्धरात्रि में काली की उपासना, उसके बाद में तारा की उपासना, उसके बाद में हम भुवनेश्वरी आती है जो सूर्य के उदय के साथ होती है, उसे वेदों में उषा कहा गया है। तो भुवनेश्वरी उषा है, और जगत का निर्माण शुरू होता है। उसके बाद में हम षोडशी तक आते हैं। षोडशी के बाद में और विकास होता है। तो हमारे जो 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों का, जो काली है वो तमोगुण का प्रतीक है। काली से हम आगे आते हैं। तो काली से जब आते हैं तो तीनों गुण आते हैं, प्रकट होते हैं धीरे धीरे क्रम से। और उसमें भुवनेश्वरी, श्री विद्या यानी षोडशी, और मातंगी और लक्ष्मी। तो इस तरह से एक सृष्टि का, पूरा सृष्टि का तैयार हो जाती है, और हमारी सृष्टि और स्थिति हो जाती है। उसके बाद में संहार शुरू होता है। संहार में क्या होता है कि हमें लगता है कि संसार में सब कुछ सही नहीं चल सकता, और उसमें तरह तरह की समस्याएं आती है। तो संसार में संहार भी उतना ही आवश्यक है, जैसे जागृत के साथ में निद्रा भी आवश्यक है। हम जागे तो उतनी देर हम सोना ही पड़ता है। खाली हम जाग नहीं सकते और खाली हम सो भी नहीं सकते। तो इन दोनों का जो बैलेंस है 3 प्रकृति का, गीता में जो 3 भेद किए कि भी जागना जितना आवश्यक है उतना ही सोना भी आवश्यक है। एक में भी गड़बड़ होगा तो नहीं होगा। बीच में स्थिति है, तो जागकर इसी को सृष्टि स्थिति विनाश कहते हैं। जब हम निद्रा में होते हैं, इसलिए भगवती को दुर्गा सप्तशती में कहते हैं निद्रा है, वो विष्णु की निद्रा है। यानी जब विष्णु भी निद्रित हो जाते हैं, उनको भी
रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो सभी इस तरह से तत्व आपस में रेस्ट करते हैं और इन तीनों के अनुसार ये देवियों का स्वरूप इसी तरह विकसित हुआ। भैरवी और भैरवी बगला जो है, बगला मुखी को हम कहते हैं कि वो शत्रुनाशिनी देवी है, स्तंभन की देवी है। तो हमारे षटकर्म होते हैं तंत्र में, वो षटकर्म में क्या है कि मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण आदि होते हैं। उनमें जो देवियां और रात्रि में इनकी उपासना की जाती है, उसमें भैरवी, भैरवी के बाद में बगला, पीताम्बरा जिसे कहते हैं, और पीताम्बरा के बाद में जो है उसमें जो देवी आती है धूमावती, और धूमावती के बाद में जो है लास्ट में फिर वापस काली आ जाती है। तो ये जो देवियां हैं, ये संसार में विनाश भी आवश्यक है, सृष्टि भी आवश्यक है, स्थिति भी आवश्यक है। इन तीनों का नियंत्रण जो करती है उसे हम शक्ति कहते हैं। रैना जी ने जो अपना कार्य किया, रैना जी का जो कार्य, इसमें सबसे अच्छा काम इन्होंने ये किया कि रैना जी ने स्पष्ट किया कि इस पर कोई ग्रंथ नहीं है, 10 महाविद्याओं पर ग्रंथ नहीं मिलते। संस्कृत में पहला ग्रंथ आज से 100 वर्ष पहले शाक्त प्रमोद लिखा गया। शाक्त प्रमोद जो ग्रंथ था, शाक्त प्रमोद ग्रंथ जो था वो खेमराज श्री कृष्णदास से छपा, और उसमें 10 महाविद्याएं बताई गई कि 10 महाविद्या हैं, और इन विद्याओं के साथ में 5 चीजें आवश्यक होती है कि इनका मंत्र क्या है, इनका यंत्र क्या है, इनका तंत्र क्या है, और इनका उपासना सतनाम क्या है, सहस्रनाम क्या है, उपनिषद क्या है। तो ऐसे उन्होंने पहली बार जो है शाक्त प्रमोद ग्रंथ छपा। उसका अभी तक हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद नहीं किया किसी ने भी। उसके बाद में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी उपासना के ग्रंथ हैं, वो अलग अलग लिखे गए। काली पर लिखा किसी ने, किसी ने तारा पर लिखा, सभियों पर किसी ने आज तक नहीं लिखा है कि सभी 10 महाविद्या एक ग्रंथ में आ जाए। ऐसा कोई ग्रंथ शाक्त प्रमोद के अलावा नहीं है। शाक्त प्रमोद संकलित ग्रंथ है, उसमें 10 महाविद्याएं संकलित की गई है, और महाराजा ने वहां कराई थी। उसके बाद में अभी तक ये जो कार्य पड़ा था, जिसमें कल्याण ने 2 अंक भी निकाले, शक्ति अंक निकाला और शक्ति उपासना अंक निकाला। उसमें काफी लेख संग्रहित किए कि शाक्त साहित्य जो है, जो सबका मूल दर्शन है, सब दर्शनों का मूल दर्शन शाक्त दर्शन कहलाता है। सभी दर्शन इसकी ब्रांच है, क्योंकि शाक्त दर्शन में सब कुछ अलाउ है। वो माता की दृष्टि है, उस माता को अच्छा पुत्र हो, बुरा पुत्र हो, सभी के लिए कल्याण करती है। अगर माता किसी का विनाश करती है तो भी उसके कल्याण के लिए करती है। माता चाहे तो 1 मिनट में खत्म कर दे किसी को भी दुष्ट को, पर खुद आके मारती है ताकि उसका भी महिषासुर का वध हो, तो भी मेरे साथ उसकी पूजा हो। तो ये माता की जो दृष्टि है, अलग दृष्टि है। इसलिए सर्व दर्शनों का जो सार है उसे मातृ दर्शन यानी हम शाक्त दर्शन कहते हैं। शाक्त दर्शन में किसी दर्शन से विरोध नहीं है, किसी बात से विरोध नहीं है। वो कहते हैं कि हमें पहली जो शर्त है वो यही है कि सर्व दर्शन अविरोध है, कि हम किसी भी दर्शन का विरोध न करें। जिसने भी जैसे भी कहा, जिस रूप में उपासना की, उसने 10 रूप में की तो भी ठीक है, 1 रूप में की तो भी ठीक है, शिव शक्ति के साथ में की तो भी ठीक है। जब आप श्रीयंत्र में देखते हैं कि श्रीयंत्र में एक बिंदु बनता है सबसे पहले, तो बिंदु जो है, हम लोग भी बिंदु ही हैं। हम लोग बिंदु क्या है कि हमें भी माता पिता के वीर्य से, एक बिंदु से हमारा निर्माण होता है। तो संसार केवल बिंदु ब्रह्म से निर्माण होता है। ब्रह्म के साथ में एक त्रिकोण होता है। त्रिकोण का अर्थ है कि 3 तरह की शक्तियां होती है, जिसे हम कहते हैं कि 3 शक्तियां कौन होती है। तो त्रिपुरा कहते हैं, काली उसको कहते हैं, तंत्र की भाषा में कहते हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। तो देवी में 3 शक्तियां होती है, वो ज्ञान रूप है, वो क्रिया रूप है और वो इच्छा रूप है। हमारे शरीर में भी 3 स्थिति हमेशा रहेंगी। कोई भी व्यक्ति जीवित है तो उसमें 3 तरह की बातें हमेशा रहेगी, कि उसमें ज्ञान शक्ति रहेगी, इच्छा शक्ति रहेगी, क्रिया शक्ति रहेगी। क्रिया शक्ति जो है वो 24 घंटे रहती है। जब से जन्म हुआ और जब तक मृत्यु होगी तब तक वो शक्ति कंटिन्यू करती है। उसे हम काली कहते हैं, कि क्रिया शक्ति जो है काली है, और उसका कभी भी 1 सेकंड के लिए भी रुकती नहीं है। हमारा श्वास जैसे चल रहा है, हमारे शरीर में क्रियाएं चल रही है, वो हमेशा, हम सो रहे हैं तो भी क्रिया चल रही है, शरीर के अंदर सभी क्रियाएं चलती रहती है। इसलिए उसमें उस जब क्रिया का जो क्षेत्र है, उस क्रिया के क्षेत्र में ज्ञान का प्रवेश नहीं होता और इच्छा का भी नहीं होता है। निद्रा में हम जाते हैं तो अमृत मिलता है, कि निद्रा में जाने से हमें अमृत मिलता है, इसलिए इसको निद्रा रूपिणी देवी कहा गया है। तो निद्रा रूपिणी जो काली है, उस काली को हम मानते हैं कि वो ब्रह्म को धारण करती है, इसलिए इसको हम एक शक्ति मानते हैं। काली जो है उसी को ज्ञान की देवी भी कहा, संहार की देवी भी कहा, और आद्या भी उसे काली को कहते हैं। दूसरी जो शक्ति है, इसमें हम कहते हैं कि ज्ञान की शक्ति। तो ज्ञान जो है, ज्ञान की शक्ति हमें स्वप्न में होती है। स्वप्न में केवल ज्ञान होता है और कुछ नहीं होता। दुनिया नहीं होती, इसमें इंद्रियां भी नहीं होती, हम देखें कैसे स्वप्न को। बस स्वप्न जो होता है, हमारी जितनी भी कल्पनाएं हैं, उसमें इच्छाएं जो है वो इच्छाओं की कल्पनाएं जो है वो सब ज्ञान में होती हैं, और उन ज्ञान का स्वप्न कहते हैं। और जब हम जाग जाते हैं, हमारी जब जागते हैं तो हमारा जो स्वरूप है वो, उसमें इच्छा शक्ति होती है। हमारी इच्छा करें नहीं करें, तो हमारे अंदर जो शिव तत्व है वो शक्ति के साथ हमारे अंदर प्रविष्ट है, और हम उस शक्ति के अनुसार हम इसका, उस शिव तत्व का जो हम विकास करते हैं,
और शक्ति के द्वारा हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जाते हैं। वापस अगर अंदर जाए, अंदर जाने के बाद में जो तीनों तत्व के बाद में शांता अवस्था बचती है, शांता के बाद में शांतितीता, इस तरह से धीरे धीरे हम जाएंगे तो शून्य में हो जाएंगे। तो शून्य से संसार पैदा होता है। तो शून्य नाम शून्य साक्षिणी यस्या परतम नास्ति शैषा दुर्गा प्रकृता, शक्ति तत्व उसे कहते हैं जो शून्य रूपा है। और उसके बाद में वही विद्या है और अविद्या है। इसके दो रूप माने जाते हैं, एक रूप काली रूप का रूप और एक तब षोडशी का रूप। तो षोडशी का रूप लाल वर्ण में है, वो क्योंकि उगते हुए सूर्य के समान रक्त वर्ण है, और काली का रूप जो है वो काला है। और सरस्वती का जो रूप है, जो कश्मीर में शारदा देवी की उपासना होती थी, शारदा वहां की प्रधान देवी रही है। तो शारदा जो ज्ञान रूपिणी है, तो उसे मातंगी कहते हैं। मातंगी जो है उसे दक्षिण भारत में मीनाक्षी देवी कहते हैं। तो मातंगी जो है वो इन सबके साथ में ये जो तीन रूप हैं, एक में वो श्वेत वर्णा है, एक में रक्त वर्णा है और एक में कृष्ण वर्णा है। ये तीनों शक्ति उनके काल के अनुसार चलती हैं। जैसे वैष्णव लोग इसे ऐसा कहते हैं, इस बात को वैष्णवों ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि 10 अवतार हैं। मत्स्य कूर्म वरा ऐसे अवतार हैं कि सृष्टि में पहले मछली पे जल पैदा हुआ होगा, तो जल भोजन मिलेगा तो फिर मछली पैदा होगी। मत्स्य से कूर्म होगा, कूर्म से कच्छप कूर्म हुआ, कर्म से बराह, बराह से वो कहते हैं बामन हुआ, बामन से इस तरह से 10 अवतार हुए। इन 10 अवतारों को उन्होंने माना ये सब 10 महाविद्याओं के अवतार थे। और वैष्णवों ने उस अवतारों के जो 10 अवतार की अवधारणा थी 10 महाविद्या की, वो उन्होंने वहां घटित कर ली और उस तरह से अपना अपना बताया कि जो काली है वो कृष्ण है। और इस तरह से 10 महाविद्या वहां 10 अवतार कहलाई। ऐसे ही शिवपुराण में मैंने देखा कि वहां भी उन्होंने 10 के 10 नाम वापस ऐसे के ऐसे ले लिए कि ये शिव के 10 अवतार हैं, और उन्होंने काली को काला कर दिया। काली क्या है? काल है। तो काल जो है महाकाल, यानी उज्जैन में काली का प्रादुर्भाव होता है। महाकाल जो है वहीं से सृष्टि उज्जैन में आरंभ होती है, और वहां महाकाल देवता हमेशा विद्यमान रहते हैं, और वहीं काली का प्रादुर्भाव माना जाता है। काली वहीं से प्रकट हुई। गढ़ काली का जो मंदिर है जहाँ कालिदास को सिद्धि प्राप्त हुई थी, वो उज्जैन में कहलाता है। तो काली वहां से पैदा हुई। तारा जो है, तारा का जो है, तारा देवी जो है तिब्बत से पैदा हुई, और तिब्बत में उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो वो तारा का जो प्रादुर्भाव वो तिब्बत में हुआ, और तिब्बत में उन्होंने तारा देवी कहा कि वो जल की प्लावन शक्ति है। जो जल जो है धीरे धीरे कम हुआ, सृष्टि का विकास हुआ, तो तारा आई। तारा के बाद में भुवनेश्वरी आई। इस तरह से इन सबका एक क्रम है। उस क्रम के ऊपर और ये 10 महाविद्या, तो 10 महाविद्या जिस तरह वैष्णव साहित्य में भी वैसे ही है, तंत्र साहित्य में भी वैसे ही है, और दुर्गा सप्तशती में भी वैसे ही है। इस पर इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा, बहुत ही इन्होंने सरल भाषा में इनको तत्वों की समझाने की कोशिश की। हमें केवल सामग्री ये तो मिलती थी, पूजा विधि क्या है, दुर्गा की पूजा विधि क्या है, तो कोई समझाने वाला नहीं मिलता है। जैसे हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, खड़नी शूलिनी गौरा गदनी चकनी था, शंखनी चापनी माना भुसुंडी परिघायुधा। तो अब खड़नी माने तलवार की देवी। अब कौन है खड़नी? कोई नहीं बता सकता आपको। खड़नी शूलिनी क्या है, तो गदिनी क्या है, चकनी क्या है, शंखिनी क्या है। तो ऐसे ही ये 10 महाविद्याओं के जो नाम वहां आते हैं, इनका खाली अनुवाद कर देते हैं, पर उसको समझाना बहुत कठिन होता है। प्रोफेसर रमन लाल रेना जी ने बहुत ही इसमें मेहनत करके और उन शक्ति तत्व को उन्होंने इसका विश्लेषण किया उस पुस्तक में। इसलिए पुस्तक बहुत ही संग्रहणीय है और आदरणीय है कि इन्होंने उन तत्वों को समझाने की कोशिश की। 10 महाविद्याओं के जो 10 रूप हैं, उन 10 रूपों को हमें किस तरह से समझें। तो उन 10 रूपों को अगर हम रुद्र की शक्ति के रूप में समझते हैं तो उसको रौद्री कहते हैं। इसे जैसे हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही निरित्यां खड्गधारिणी पतिच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी उदित्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेत अस्तात् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा वाहन। कि 10 देवियां 10 दिशाओं की प्रतीक है। वेदों में 10 दिक्पाल कहे गए। 10 दिक्पाल जो होते हैं वो, उससे हम जीवन हमारा सुरक्षित होता है। इन देवी की कृपा से हम जीवित हैं। तो 10 दिक्पाल क्या? तो कहते हैं पूरब में इंद्राणी है, तो इंद्री देवी कहलाती है। अग्नि कोण में अग्नि है। अग्नि जो है वो वैष्णवी अग्नि जो है, अग्नि को ही हम देवी कहते हैं। देवी जो है अग्नि तत्व से बनी है, इसलिए प्रकाशमय है। और अग्नि के बिना कुछ भी नहीं बनेगा। अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि तत्व जो इसमें प्रधान तत्व है, और उष्णता उसी में आती है। अग्नि जो तत्व है वो प्रकाश का तत्व है। तो ये प्रकाश करती है, मतलब ये प्रकाश करती है, ज्ञान क्रिया इच्छा को संपन्न करती है, इसको अग्नि कहते हैं। दक्षिण में जो तत्व है उसे हम काली कहते हैं। उसे वेदों में उसे वाराही कहा गया, रात्रि देवी कहा गया, उसे यमी कहा गया। वो सबके प्राण लेती है। जैसे इंद्र, पहला जो शक्ति इंद्राणी है, इंद्राणी शक्ति हमारे को इंद्रिय बल देती है, और हम 10 इंद्रियों के द्वारा हमारे शरीर में वो विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां।
तो वो सब इनका देवता इंद्र को माना गया कि इंद्र जो है वो इन सब देवताओं का अधिपति है। हमारी 10 शक्तियों का मालिक इंद्र है और वो 10 शक्तियां हमारे अंदर इंद्रिय रूप में विद्यमान है। इसके बाद में जब अग्निकोण में जाते हैं तो अग्निकोण में अग्नि को कहा कि अग्नि जो है ये समुद्र भूतों का अधिपति है। पेट में जिस तरह जठराग्नि होती है, गीता में वो कहते हैं कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम प्राणम आस्थित, कि हम सब प्राणियों में अग्नि के रूप में विद्यमान रहता हूँ। अगर पेट में अग्नि नहीं रहेगी तो भोजन ही नहीं पचेगा, इसलिए अग्नि जो है वो हमें भूतों की अधिपति कहलाती है। ये दूसरा रूप है। तीसरा जो रूप है यम, जो है वो हमारे श्वास का प्रतिनिधि है, मृत्यु का अधिपति है, उसको यमराज कहते हैं। तो काली भी उसे ही कहते हैं, वो मृत्यु देने वाली जो देवी है वही काली है और वही अमृत देने वाली भी वही है। इसलिए इन दोनों इनका स्वरूप ऐसा है कि उनको इसको परिभाषित करना बहुत कठिन होता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि अंधकार की देवी काली है, एक तरफ ज्ञान की देवी सरस्वती है, तो ये विपरीत संबंध है। पर वो देवी में सभी रूप संभव है, वो इसलिए विद्या भी कहलाती है, अविद्या भी कहलाती है। वो मृत्यु की देवी भी है क्योंकि वो सबको मृत्यु दे सकती है, और अमृत की देवी वही है। इसके बाद में नैऋत्य कोण में जो आती है उसे हम कहते हैं नैऋति, जो है उसे वेदों में ज्येष्ठा कहा गया है। ज्येष्ठा देवी जो है वो ज्येष्ठा जो है वो एक तरह से असुरों की देवी है। नैऋति को कहा गया कि वो असुरों का देवता है। एक उसके सामने ईशान कोण में सूर्य शिव बैठे, वो देवता वो जो है महादेव है। इस तरफ महासुरी देवी कहते हैं कि महासुरी जो है वो उसे हम कहते हैं कि वो जो ज्येष्ठा देवी है, नैऋति है, उसे हम तंत्र की भाषा में धूमावती कहते हैं। क्यों? धूमावती अलग तरह की विद्या है और वो विद्या अलग तरह की। जब हम पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में जो देवी है उसे वारुणी कहा गया। वारुणी जो है वरुण की देवता, यानी जो जितने भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां बहती है उन सबकी जो अधिपति है। क्योंकि अग्नि और जल के बिना हमारा जीवन क्या चल सकता है? जल जिस तरह से हमारे पहले सबसे पहले सृष्टि जल से ही हुई है, जल पैदा होने के बाद ही कोई उसमें चेतन हो सकता है। तो वो जो शक्ति है स्रोतों की, नदियों की जो शक्ति है, उस शक्ति को उन्होंने कहा कि वो वारुणी शक्ति है, उसे वरुण कहते हैं। और जल में जो रहता है उसे नारायण कहते हैं, उसे विष्णु कहते हैं। कि जल में नार में रहने वाला नारायण, तो वो विष्णु ही शक्ति कहलाती है। क्योंकि जल हमारे जीवन के लिए वो आधार है, कि हमारा जल, अन्न, भोजन ये सब हमारे आधार है, इसलिए इसे विष्णु रूप कहा गया कि अन्नम वे ब्रह्मा। इसके बाद में जो वायु कोण की शक्ति है, वायु कोण की जो शक्ति है उसे वायु कहते हैं। वायु जो है उसमें, उसके बिना हमारे श्वास कैसे चलेंगे? इसलिए हवा, 5 तत्वों में हवा भी हमारे लिए उतनी जरूरी है। हवा के बिना तो हम एक क्षण भी नहीं रह सकते, इसलिए उसको अग्नि वायु शक्ति कहते हैं। और इसके बाद इसको खड़धारणी कहा गया। इसके बाद में उत्तर में जो सोम शक्ति है, सोम को कहते हैं कि उसे कोबेरी कहा गया तंत्र की भाषा में, और वेदों में उसे सोम कहा गया, चंद्रमा को। वो अमृत तत्व है। यानी दक्षिण की जो शक्ति है वो काली है, मृत्यु की देवी। उत्तर की जो शक्ति है और सोम शक्ति, तो सोम जो है, सोम को चंद्रमा कहते हैं। स्वरों में जो 16 स्वर होते हैं, ऐसे लेके तक 16 स्वर जो होते हैं वो स्वयं शक्ति से विराजमान रहते हैं। तो उस सोम शक्ति को जो हम कहते हैं कि वो अमृतमय तत्व है। हमें दोनों चीज चाहिए। ईश्वरोपनिषद में कहते हैं कि अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या अमृतम अस्मृते। हमें विद्या भी चाहिए, अविद्या भी चाहिए। अविद्या जो है, अविद्या से हम मृत्यु को तैरेंगे, तो हमें काली का रूप ध्यान करना पड़ता है कि अविद्या रूपा, कि वो अज्ञान रूपा है। और अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा, उससे आप मृत्यु को जीतेंगे, विद्या से आप अमृत को प्राप्त करेंगे। हमें दोनों चीज प्राप्त करनी है। जो एक को प्राप्त करता है वो सफल नहीं होता, जो संसार को छोड़ता है वो भी दुखी है, और जो संसार में रहता है वो भी दुखी है। पर दोनों में को जो प्राप्त कर लेता है, कि जो साधना करता है और साधना करके, इसलिए इसे महाविद्या कहते हैं। महाविद्या का अर्थ है कि महान, यानी ब्रह्म से जो जोड़े वो महान विद्या कहलाती है। महत का अर्थ है महान जो बुद्धि, ज्ञान या ब्रह्म, उस ब्रह्म से जो जोड़ती है वो हमें महाविद्या कहलाती है। तो इसलिए दुर्गा सरस्वती में कहते हैं विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु तय्ये कया पूरित मम्बयेत ताते स्तुतिस्तव्य परोक्ति। कि विद्या जो है, विद्या स्त्री देवता के मंत्र को कहते हैं। वेदों में देवताओं को स्त्रीलिंग में कहा गया है कि जितने भी देवता, अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, देवता सब स्त्रीलिंग में प्रयोग है। देवा नहीं कहा उनको, देवता कहा गया। तो जितनी भी शक्तियां हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। कि माँ जो है जिस तरह से बच्चे का हर तरह से कल्याण चाहती है, माँ का मुकाबला कहीं दुनिया में नहीं होता। इसलिए मातृ देवी की जो उपासना होती है, शाक्त उपासना जो है, वो सब उपासनाओं का सार मानी जाती है। कि मातृशक्ति जो है वो सब उपासनाओं का सार है। इस उपासना में, इस मातृ देवी की उपासना में हम कहते हैं विद्या। तो वो विद्या जो है, विद्या हमें देती है, अविद्या भी देती है साथ में। इसके बाद में 8 जो शक्ति है, इसको शैविक शक्ति कहते हैं। ईशान में उसे पशु नाम पति कहा गया, कि पशुओं का जो पति है
वो पशुपति जो है वो हम लोग सब पशु हैं। क्यों पशु हैं हम लोग? हम सब पासों से बंधे हुए हैं। हमारी तरह तरह की इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं के चक्कर में हम पूरी जिंदगी लगे रहते हैं। कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और हम अंत तक इच्छाओं में पास में बंधे रहते हैं। उस पास से मुक्त करने वाला शिव तत्व है, वो ज्ञान तत्व है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। काली को भी कुछ नहीं चाहिए, वो शमशान में जाके काली बैठती है। इस तरह से इनकी तीर्थ यात्रा होती है और ये एक यात्रा 10 महाविद्याओं की है। आधार शक्ति जो उसको ब्रह्माणी कहते हैं वो ज्ञान शक्ति कहलाती है, और ऊपर की जो शक्ति है वो वैष्णवी शक्ति कहलाती है। तो इस तरह से 10 शक्तियां हैं। तो कहते हैं इन 10 शक्तियों को शैव लोग रुद्र कहते हैं, रुद्र के 10 अवतार कहते हैं। और 11वां जो रुद्र है उसी तरह यहाँ कहते हैं कि ये 10 दिशाओं की जो अधिपति हैं, इनके बाद में जो अंतिम जो देवी है वो कहते हैं कि चामुंडा शववाहना, कि चामुंडा जो शक्ति है वो सबका संहार करके बैठती है। उसे शववाहना कहते हैं। पूरा जगत उसके सामने शव होता है। उसके हाथ में जो उसका रूप है उसमें खोपड़ी है, खोपड़ी में उसको कपाल कहते हैं, स्त्री पीती है, गले में खोपड़ी में माला है। इस तरह का जो विराट सब कुछ का सर्वनाश का जो रूप है, उस रूप में वो खिलखिला के हंसती है और एकदम काली है, नग्न है। इस तरह की जो देवी है वो भयानक देवी है, पर वो भयों को खत्म करती है। वही ज्ञान देती है कि संसार में आपको, जो इस संसार को अगर आप लीला भाव से देखेंगे तो संसार आपको कोई दुखी नहीं करेगा और आपको वही मुक्ति देती है। इसलिए काली को हम कहते हैं कि ज्ञान की सबसे बड़ी देवी है और मुक्ति देती है। इस तरह से ये जो काम था, इस काम पर बहुत ही अच्छा इन्होंने शुरुआत की अरेना साहब ने, और इन्होंने 10 महाविद्याओं का स्वरूप संक्षिप्त में और सरल तरीके से हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि इनको आप जाने और समझें और इसकी उपासना करें। उपासना जो है, उपासना को अविद्या कहते हैं। उपासना अविद्या इसलिए कहलाती है, शंकराचार्य कहते हैं कि जो भी हम किसी देवता की उपासना कर रहे हैं तो वो उपासना अविद्या कहलाती है। पर उस उपासना से जिसकी प्राप्ति होती है, जब उसको स्थूल, सूक्ष्म और 3 तरह के होते हैं, पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, और अंत में उसी उपासना से हमारी मुक्ति होती है, क्योंकि उपासना से हम संसार को तर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने इस किताब को, इस पुस्तक को, और बहुत ही मैं इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और मैं इनके प्रणाम करता हूँ। और जिन लोगों ने इसको प्रकाशन किया वो सब मेरे लिए धन्यवाद की बात है। और मैं इस पूरी जो आपकी जो शारदा टीम है, इन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस प्राचीन रहस्यमयी विद्याओं का प्रकाशन किया। और ये पुस्तक सर्वथा संग्रहणीय है, आलोचनीय है, और इसके बारे में अधिक बात तो अरेना साहब भी बताएंगे। तो मैं इसको बहुत, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और मैं इस तरह से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अगर कोई जिज्ञासा फिर बात कर सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर व्याख्या दे दी 10 महाविद्या के बारे में। अगला जो हमने बात की, अगली जो हमारी पुस्तक है राज्ञा प्रादुर्भाव, सो जो पुस्तक हमारी और शारदा टीम से प्रकाशित हुई, सो जो राज्ञा प्रादुर्भाव के बारे में अगर मैं थोड़ा बोलूं, इट इज अ सिग्निफिकेंट टेक्स्ट dedicated to goddess Ragna Bhagavati, as revered as Kheer Bhavani. This Granth marks a divine manifestation, Pradurbhav of the goddess at the sacred Kheer Bhavani temple in Tulmula, which is in Kashmir. The temple is renowned for its sacred spring, where devotees gather annually to pay homage to Ma, Devi Ragni. Significance and symbolism. सबसे पहला, the term Pradurbhav refers to goddess divine appearance or manifestation, symbolizing her protective presence over Kashmir and her role as guardian deity of the Kashmiri Pandits. Kheer Bhavani temple is considered one of the foremost Shakti Peethas in Kashmir, embodied in goddess grace, compassion, and strength. The sacred spring at Kheer Bhavani temple is an integral part of the festival mystic. Devotees believe that the spring's watercolor changes at every time, and which indicates the mood of the goddess. The belief enhances the spiritual aura of the temple and is the major part of the festival's appeal and devotion. Devotees offer खीर, ये हमको पता है, हम खीर, फूल, दूध माँ को अर्पण करते हैं. Historical and cultural roots. The Kheer Bhavani shrine is a historical root of Kashmir spiritual history. Legendary says that Ragna Devi in Kashmir as an abode due to her natural beauty and tranquility. The ancient text and 4 loks associated with goddess
highlight her as a symbol of divine protection and a bridge between the symbolic, physical, and the spiritual realms. Overall, Ragna Pradurbhav is a historical facet of how Shama herself chose to manifest as a sacred Vaishnavi Kund at Tulmula. It continues to foster a profound sense of cultural pride and spiritual continuity among the devotees. हमारा एक छोटा सा इस हमारे एक स्कॉलर श्री काशीनाथ पंडित जी का मैसेज है जो मैं आज उनका ऑडियो है which I will run here. एक मिनट. I, Kashinath Pranita, am happy to know that the distinguished Indological scholar and my friend, Dr. Oh. I, Kashinath Pranita, am happy to know that the distinguished Indological scholar and my friend, Dr. Kamalal Raina, has added one more book to his published list of books, and this is Dasha Mahavidya, a work dealing with Shakti Tattva. The author has done commendable research work in which he has tried to explain the Dhyana Mantra and its application for understanding the Shakti Tattva, read with Shiva Tattva as defined in Tantra law. Dr. Kamala Raina is an astute research scholar who has made valuable contribution to the philosophical and mythological fund of ancient Kashmir. He has enriched the fund through reinterpretation and reorientation of facets of Kashmir mythology and ancient learning. I wish him health to continue making valuable service to great Indian civilization. Thank you. हमारे बीच जिससे पहले हम चमनलाल जी के पास आए, हमारे पास चंद्रशेखर जी है. वो इस पुस्तक के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं. चंद्रशेखर जी, आप are you there? Yes, I'm here. Yes, yes. Please unmute and yeah. Listening to the distinguished scholars that are present here, I feel not even fit to be present in such company. But it indeed is an honor for me to even say a few words about this work done by Dr. Raina. Dr. Raina has obviously, as most of us know, been publishing extensively about the scriptures, our ancient heritage, for the benefit of our future generations. And the latest work, Dasha Mahavidya, complements his prior work in this area. Going through this work, you know, it's very fascinating because I come from science background, and as we get to understand more and more our Hindu spiritual philosophy, it resonates so well with what we are learning in the science. And as has been mistakenly believed that there's a contradiction between science and spirituality, and we're trying to, if something we have to verify, we say, well, even science says so. But it seems that there is really no contradiction. Science and spirituality are complementary. Science's pursuit of truth at a physical plane, and the pursuit of same truth in metaphysical plane is spirituality. But both are pursuing the truth at different levels in different dimensions.
And in Dash Mahavidya, the 10 Maha is great and Vidya is the knowledge. These 10 great wisdom goddesses truly are expressions of one Ma Shakti. The unmanifest consciousness, which is the true substratum of this entire manifest universe, is Shiva. And when it has urged to express itself, Shiva expresses the Shakti. And 10 Mahavidyas are expressions of that Mother Divine Shakti in different forms. And then Shakti expresses as this world, which is the Prakriti. So Shiv, Shakti, and Prakriti are not separate. They are 3 dimensions of the same singular truth. And we recognize in science also at a quantum level that there is really complete unity at that level, and it expresses through different permutations, combinations in different forms. So that's again complementary. When I was going through the work done by Dr. Raina, it was so interesting that how each of these wisdom goddesses expressed a different facet, and his book is also in the facets of, this Mahavidya, that they are really not separate. They are different aspects of the same Mahashakti. And also at a physical level, we see that. For example, I will talk about Chanmasta or Chanmastika, as she's also called, is the Divine Mother, where she actually cuts her head off to feed her 2 sisters, which are Jaya and Vijaya, and then herself also. Now, the self-immolation is also seen in the manifest world. And I'll give you an example here. I have a medical background and tell you, in embryology, when we are developed in our mother's womb, there's just one cell which multiplies and multiplies and multiplies, and ultimately an embryo is formed, and then finally the baby is born. At that level, our hand, our fingers, is all one mass, they're not separate. And then the cells within the fingers, at this level, they choose to die. It's a self-immolation so that your finger can separate. That is Chanmastika, where the energy within the cell chooses to destroy itself to restore the function that some fingers are separated. And one can give innumerable examples in the human development where there's creation and dissolution happening. And so this great wisdom is not available to the modern world, and is so critical to build this connection between science and spirituality. And as was mentioned by Reverend Dr. Rajendra Prasad Sharma ji, the so little work has been done on the Mahavidya. The only work was done by Western writer David Kinsley, who basically did the academic work and just wrote, but did not get into the actual spiritual essence and meaning of this. So that's really, and that's happened with many Western authors. They just don't get the actual essence of this. So this was very much needed work. And so we are all grateful to Dr. Raina to have taken time and effort. And I know how hard he works. He works day and night to do work and try to make it easy for people like us to understand this great wisdom and understand these great wisdom goddesses. And it's also even greater pleasure for me to realize something very close to us at our heart from Kashmir, that Ragini, the book Ragini Prabhupada is also being released. I recall many, many times when I was in Kashmir going to Kshir Bhavani Mandir, and now we understand that how Mother Ragini appeared there. And now we have a book, and for that we're also very, very grateful to Dr. Raina. All I can say that may the Shiva and may Shakti, they all bless Dr. Raina with a long life, so he can continue to bless our community with these wonderful works and continue this tradition forward. Thank you so much. Thank you, Chandrasekhar ji. Dr. Raina ji, now I will give
the audience opportunity to listen to you. So please, दोनों पुस्तकों के बारे में, दश महाविद्या और महारानी प्रादुर्गा के बारे में आप बताइए। नमस्कार और प्रणाम। सबसे मेरा प्रणाम आचार्य महोदय का, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया दश महाविद्या लिखने के लिए। अगर वो मुझे प्रेरणा नहीं देते और मुझे नहीं ढूंढते तो संभवतः इस प्रकार की पुस्तक नहीं आती। डॉक्टर शर्मा जी स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान हैं, जिन्होंने तंत्रालोक पर काम किया है, आगम शास्त्रों पर काम किया है, और जिनकी पैनी नजर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बिंदुओं पर है कि किस तरह से शिव शक्ति और अणु का एकीकरण होता है, और इस तरह से उनका कार्य शैव दर्शन कश्मीर, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अभिनव गुप्ता, वो किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये उनकी मान्यता है। यदि भी आयु में वो मुझसे छोटे हैं, परंतु ज्ञान में, शास्त्र के ज्ञान में वो उच्च कोटि के विद्वान हैं, जो सदा और सर्वदा हमेशा शक्ति के बारे में ही बोलते हैं, और वो भी उसको कश्मीर के साथ उसका मिलान करते हैं। दिस इज अ ग्रेट ब्यूटी एंड ग्रेट थिंकिंग इन हिम, दैट ही यूनाइट्स and that the concept of agama, what is in Kashmir, is projected in the Sanskrit works, because he has been the professor of Sanskrit and taught for many years Sanskrit at the University of Rajasthan, and then joined this department of philosophy, where he tried to make an essence of building up a relationship between Kashmir as the crown of India with India. This is the great beauty in him. और वो सदा, जब मैं उनके ऑफिस में जाता था तो उनके ऑफिस में सदा ये चित्र रहता था। आप इस चित्र को देखते, महामहेश्वराचार्य त्रिकाचार्य स्वामी राम जी महाराज, ये उनके ऑफिस में, जो उनका ऑफिस था यूनिवर्सिटी में, उनके ऑफिस में ये सदा रहता था। मैंने उन्हें पूछा ये क्या कारण, उन्होंने कहा ये ज्ञान के भंडार है, अगर ये नहीं होते कश्मीर शैव दर्शन होता ही नहीं, तो कश्मीर शैव दर्शन के बारे में कोई बोल भी नहीं सकता था। इस तरह से एक महानता एक रिसर्चर की होती है कि वो स्रोत, मीन्स द सोर्स, प्राइमरी सोर्स को जाते हैं। व्हाट इज बिहाइंड द प्राइमरी सोर्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए ट्रू रिसर्चर, as we understand from the research methodology point of view. उन्हें प्रेरणा हुई, उन्होंने कहा कि 10 महाविद्या के बारे में जो कोई भी लिखा है अंग्रेजी, वो आइकोनोग्राफी पर ही है और आप इसे लिखे। मैंने कहा कि कश्मीर तो खत्म हो गया, हमारे पास जो पुस्तकें थी वो जलाई गई या उनका विध्वंस हो गया। मैंने कहा सिर्फ अब कई व्यक्तियों में, जिनमें से आयु में बहुत कम है, मगर उन्होंने बहुत काम किया है कि किस तरह से कश्मीर के जितने भी हमारे शारदा स्क्रिप्ट्स है उनको हम सेव कर ले। उसमें मैंने कहा, उन्होंने कहा कौन से, मैंने उनको कहा कि एक राकेश कोल है जो पहले पुलिस में इंस्पेक्टर थे, उस पुलिस की नौकरी को त्याग करके उन्होंने इस दैवी कार्य को अपने हाथ में लिया। दिस ए ग्रेट थिंग फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू कम इनटू दिस वर्क। आई अप्रिशिएट इट वेरी मच। तो इस तरह से एक प्रोग्राम बन गया और इस प्रोग्राम के द्वारा मैंने इस पुस्तक को लिखा। इससे पहले उन्होंने मुझे कई बार यूनिवर्सिटी में बुलाया और वो ऑलवेज वो अपने डिपार्टमेंट में कश्मीर शैव दर्शन, श्री अरविंदो, शास्त्र दर्शन पर लेक्चर करवा लेते थे, मुझे बुलाते थे, इस तरह से मेरा मान सम्मान बढ़ाते थे। इट इज रियली a good omen for all of us to hear what he says about the Shakti Upasana, what he has told me, and I could put it in a stenographic way in my book. ये जो मेरी पुस्तक है, मैं एक निमित्त मात्र, बाबा सज साचन, मैं निमित्त मात्र बन गया और उसके लिए मैंने ये शब्द यज्ञ किया, और इस शब्द यज्ञ को जिसको इन्वोकेशन या अनुष्ठान करते हैं वो डॉक्टर प्रोफेसर आचार्य महोदय ही हैं,
जिनको हमने सुना। एंड आई विश कि किसी तरह से रिकॉर्ड हो जाए, एंड आई शैल ट्राई to translate each and every word in English so that we can understand, so that the future generation will understand what Shakti Tattva is and what is the contribution of Kashmir towards this concept. अब रही बात, मैं मुख्यतः जब मैं बीए जब मैंने किया था, मैं डबल कोर्स मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छा आनंद आता है। अब दश महाविद्या के बारे में आपको दिखा देता हूँ ये क्या होता है। बाकी तो आचार्य महोदय ने तो बता ही दिया, और चंद्रशेखर ने साइंस के बारे में भी बता दिया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सोपोरी जी ने कहा कि जब उन्होंने मेरी पुस्तक पढ़ ली, then he told me that he has also written and he is going to write a detailed work on Dashma Vidya and the plant life, क्योंकि उनको प्लांट्स के साथ, बायोलॉजी बॉटनी के साथ बहुत, वो तो उसके एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल रिनाउंड है उसमें, तो वो किस तरह से वो जोड़ रहे हैं। और डॉक्टर साहब की, आचार्य महोदय की प्रेरणा से ही 3 व्यक्ति अब इस काम में, मैंने तो अंग्रेजी में किया, अब डॉक्टर चंद्रशेखर इसको मेडिकल साइंस के साथ जोड़ते थे, और डॉक्टर सोपोरी जी इसको अब प्लांट लाइफ के साथ जोड़ते। कितनी महानता है। चिंतन देवी का था, और वो मूल स्रोत डॉक्टर आचार्य महोदय बन गए और हम निमित्त बन गए। और इस तरह से ये देवी की ही इच्छा होती है कि किस समय पर, जिसको हम कहते हैं टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन, एंड इन द लैंग्वेज ऑफ श्री अरविंदो वी से दैट इट इज डिवाइन प्रोविडेंस। ये एक डिवाइन प्रोविडेंस है कि किस तरह से दैवी शक्ति काम करवा लेते हैं। अब मैं, जैसे मैंने कहा, मैं इसको दिखाता। सबसे पहले मूल प्रकृति होती है, वो मूल प्रकृति ये देख लीजिए, जिसको डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि ये मूल प्रकृति है, काल रात्रि है, इट इज ऑल। और यही शून्य अवस्था है, दिस इज शून्य अवस्था। जब इस शून्य अवस्था में स्पंद होता है, तो then it takes the form of like this। इसी शून्य में आप देखते हैं कि जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं, रंग होते हैं, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि दुर्गा सप्तशती में भी है, इसी प्रकार से इसमें ये वर्ण, रंग, कलर्स आते हैं, ह्यूज जिसको अंग्रेजी में कहें, ये इसमें डेवलप होते हैं। यहाँ से ये इसमें एवोल्यूशन होता है। श्री अरविंदो भी इस एवोल्यूशन को मानते हैं। और इसके पश्चात जब इसका और विकास होता है तो ये प्रकाश में होता है। और जब इस प्रकाश को हम, ये तो एक ही है, और इसको मिलाते हैं तो आप देख लीजिए, ये दिस इज 1 एंड दिस इज शून्य, इसको हम we say it is 10। so this is the Prakash and Vimarsha together. When we put it together, it becomes 10, and this is the extension of 9 and plus 1। और 9 जो है, जिसको मैथमेटिक्स में इंटीजर्स कहते हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो शून्य नहीं होता तो संसार नहीं होता। शून्य ही पूर्ण अवस्था कहलाते। सो शून्य ही पूर्ण अवस्था, इसको किस तरह से क्या, इस तरह से जिसमें हिरण्यगर्भ हम कहते हैं, हिरण्यगर्भ में ये देवी जो है, ये इसमें व्हाइट में भी यहाँ पर आप देखते हैं सोने का कलर है, हिरण्य गोल्डन कलर है। और यही हमारी गर्भ अवस्था होती है माँ के उदर में भी और ब्रह्मांड के उदर में भी, कि ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। इस तरह से मैथमेटिकली भी हम इसको डेवलप कर सकते हैं, और यही बात है। और हमारे शास्त्र में कहा गया, एक शक्ति परमेश्वर से बिना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेश विष्णु भोगे भवानी, पुरुषेश विष्णु भोगे भवानी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि पुरुषेश विष्णु, ये जो पुरुष है, पुरुष तत्व है, ये वैष्णवी तत्व है। समरेच दुर्गा प्रलयेच काली, समरेच दुर्गा प्रलयेच काली। और जो प्रलय की काली होती है, जो आचार्य महोदय ने कहा कि वही स्थिति भी है, लय भी। अगर प्रलय नहीं होता, वो डॉक्टर चंद्रशेखर ने जिस तरह से कहा कि यही जो है, ये सेल, ये किस तरह से म्यूटेट होती है। और दुर्गा सप्तशती में when we go to the end of the Durga Saptashti, we read the 3 rahisyas, and these 3 rahisyas are Pradhanik Rahasya, Murti Rahasya, and the other is Pradhanik Murti Rahasya, as well as
Dr. Saab, please tell me what is the third rahasya? Pradhanik rahasya is one. The second is this. I will just let you know this time for 1 minute, please, because at this age I also forget the things. Or Vaikriti rahasya, sir. As it is Prakritik rahasya and Vaikriti rahasya. Vaikriti is but the definition of this Dasha Mahavidya. Vaikriti rahasya is the definition of the Dasha Mahavidya. इस तरह से इसका प्रादुर्भाव होता है और इसी प्रादुर्भाव को हमारे जो बच्चे हैं आज की पीढ़ी में जो है उनको पता नहीं है. They don't understand Sanskrit, they don't want to read Sanskrit और हिंदी तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं. अंग्रेजी के बारे में ये जो उनकी ये पुस्तक होती है तो ये बहुत अच्छी बात है. अब रही बात राजन्य प्रादुर्भाव के बारे में. यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के यूनिवर्सिटी ऑफ श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया था जिसका नाम है श्री रागिनी सहस्र नाम निरूपणम और उस निरूपणम को प्रोलोग की उस वक्त आवश्यकता थी और वो प्रोलोग मेरे पास तो था नहीं एंड आई वाज नॉट हैविंग द प्रोलोग द एनीहाउ आई कुड गेट द प्रादुर्भाव एंड देन आई रोट इट. I edited it and translated. I don't do the translation, but my work is always based on the transcription. What I understand, what is my feeling about the things which I have already heard from my ancestors, from my teachers, from my gurus, and then I put it in English so that the new generation will understand it. तो उस तरह से ये बात तो राकेश कोल जी के मन में आया और उन्होंने कहा कि हम तो तुलामला जाते हैं, खीर भवानी जाते हैं, मगर हमें पता नहीं व्हाट इज द सोर्स, व्हाई इट इज श्यामा एंड श्यामा हैज बिकम रागिन्या. Actually the word is Ragini or Rajini, and then in Kashmiri we call it Raginya. Raginya Bhagavati Chaturbhujam Chandra Kalard Shekharam Simhasanastham Bhujko Pavitini Basham Kushamburo Khadgadarnim Ragnim Baje Chetas Rajadainim. So ये राजधानी ही राज राजेश्वरी है. जब हम कादी विद्या पढ़ते हैं तो राज राजेश्वरी के क ए ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम स क ल ह्रीम ये जो बीज मंत्र है, इन्हीं बीज मंत्रों का सामूहिक रूप है, वही का देवी श्यामा या राजनी भगवती का स्वरूप है. और इसके साथ इसमें दोनों चीजें, विद्या भी अविद्या भी, ज्ञान भी चेतना भी और उसके रहस्य भी सभी आते हैं. इस प्रकार से आज के दिन में उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मेरे शब्द में साथ दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ. इस काम को जो मैंने किया दश महाविद्या पर, इसको दो प्रकार से दो लोगों के पास मैंने इनको मैन्युस्क्रिप्ट भेजे. एक प्रोफेसर नेथन कैज, ही इज प्रोफेसर एमेरिटस of the religious studies and is very well honored for his knowledge of Hinduism, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी छात्र रहे हैं. तो उन्होंने कहा ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये हम वेस्टर्न थिंकिंग के साथ जब हम हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं. और उस पर उन्होंने उस दृष्टि से देख लिया और उन्होंने उस पर अपने कमेंट्स लिख दिए जो इस पुस्तक में भी है. और दूसरी मैंने इसको पहले तो आचार्य महोदय ने ये सभी पढ़ ली, तो उसके पश्चात जो भारत में बहुत ही प्रतिष्ठित संस्कृत के विद्वान है उपाध्याय देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी, उन्होंने उसको शास्त्री से इसे भारतीय दृष्टि से अध्ययन किया. और इस तरह से इस पुस्तक को उन्होंने कहा कि दिस इज इट हैज द बेस with Indian ethos, but it is projecting towards the Western knowledge. This is what they say. And this is really helpful for researchers. And this is my humble work dedicated to all those Sanskrit scholars and Shakta Bhaktas who have come and attended this occasion. And I also request Acharya Mohoday ji to ask Dr. Chandrasekhar and Dr. Sopori ji to work on this idea how science and spirituality can be built up together.
मैं इसी तरह से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और सदा चाहता हूँ कि आचार्य महोदय की कृपा मुझ पर बनती रहे। ओम शांति। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद चमनलाल जी, धन्यवाद राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी। आप हमने बहुत कम समय दिया आप लेकिन उपलब्ध हुए और आपका आज विस्तार से हमने दश महाविद्या के बारे में सुना। धन्यवाद डॉक्टर सराफ जी, धन्यवाद स्वाति जी, आपका हमने सुना। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। एंड अंत में सब जितने भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और जो रिकॉर्डिंग मैं पब्लिश करूंगा, और अंत में मैं सबका आपका आभारी से धन्यवाद एंड हार्दिक प्रणाम। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति।